Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'll begin my session. So, hello and welcome everyone. Thank you for taking the time to join us today. My name is Aisha Mahmood and I am the ETP STP coordinator at Association of Muslim Professionals, abbreviated as AMP. In order to start the session, I'll first introduce AMP very briefly to you all. AMP is a non-profit organization with an on-ground presence in more than 140 active chapters across 26 states in 20 countries with almost 6,000 active members. AMP mainly works in three domains: education, employment, and empowerment. AMP has many achievements to its credit under its main flagship projects and keeps adding new ones as the need arises. SDP, or School Development Program, has sessions for all stakeholders in the education field. Employment Assistance Cell, or EAC, launched in 2014, conducts job fairs and job drives, and it also conducts ETPs in colleges. So far, AMP has conducted more than 40 job fairs and around 250 job drives, bringing job seekers and corporates together and facilitating the placement of more than 15,000 needy candidates. It regularly runs career guidance seminars at more than 50 different locations in India, benefiting more than 10,000 students every month. AMP has supported more than 500 needy and deserving students by funding their higher education. It has helped more than 500 orphans with basic education as well. It has supported more than 200 poor and unemployed with its self-employment schemes in the past 5 years. Some new digital initiatives by AMP are: first is indiazakat.com. Indiazakat.com is India's first online zakat crowdfunding platform and was launched in April 2020 to liberate Indian Muslims from poverty and to set the individual on the path of self-sustenance. The IndiaMentors.com, or TIM, is an online mentoring platform that is free and open to all. It envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. The third initiative is empowersjob.com. It is an online portal started in October 2020, which endeavors to connect the right talent to the right opportunity. Talking about the reach of AMP, it is also present in the Middle East with chapters in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and UAE. And active volunteers are present in Singapore, Malaysia, South Africa, Oman, Bahrain, UK, US, and Canada. Lastly, I would like to emphasize that more than anything else, it is the rope of Islam that the members of AMP hold on to while treading the strenuous path of empowerment of the Indian Muslim community in particular and the society as a whole in general that has been responsible for the phenomenal growth that AMP has achieved in just over a decade. Now, without delay, I would take the privilege to introduce our speaker of the today, Ms. Shaheen Islam ma'am. Ms. Shaheen Islam has a psychology background and has been a teacher of the English language, a center administrator for Cambridge International Primary Program and Cambridge Lower Secondary Program, and head of a school in Saudi Arabia for over 20 years. She has also had the honor and pleasure of working with especially abled children. On her return to India, she joined ICS,
where she has been working as a senior career counselor for the past 17 years. She joined Association of Muslim Professionals AMP in 2017 and after being Lucknow chapter head for a year is now serving in the capacity of state head Uttar Pradesh since 2020. Now I'll request Shaheen Islam ma'am to start her presentation on soft skills. Assalamu alaikum and good afternoon to all. This is my first question to all of you. पहला सवाल आप लोगों से है ये और मैं चाहूंगी कि जो बोल सकता है अगर माइक पे तो वो बोल के जवाब दे सकता है और जो नहीं बोल सकते तो वो चैट बॉक्स में टाइप करके जवाब दे दे। This is my first question. Are you ready for tomorrow? आप में से कितने लोग हैं जो ये ऑनेस्टली कह सकते हैं कि मैं कल के लिए तैयार हूं? कल से मुराद कल आने वाला कल नहीं, यानी सैटरडे नहीं, बल्कि योर फ्यूचर लाइफ। आप लोग सब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं? यस, वेरी गुड, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छा। आई एम सो ग्लैड टू सी दैट कि आप लोग, बहुत सारे लोग आप कह रहे हैं कि यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर। दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत सोच समझ के अपना पाथ चार्ट आउट किया है। दैट्स वंडरफुल। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेरी गुड, ग्रेट। सो अब हम आज का टॉपिक, जैसे आप लोग को पता है, सॉफ्ट स्किल्स है। सो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट स्किल्स इन जनरल। स्किल से क्या मतलब है, और स्किल्स तो आपको पता होंगी क्या होती हैं। इसके बारे में सिर्फ दो बात मैं बताना चाहती हूँ। ऑल ऑफ अस आइदर हैव स्किल्स, हमारे जरूरत भर की स्किल्स हम सबके पास होती हैं, और अगर नहीं है तो वी कैन लर्न एनी स्किल वी वांट टू। हम जो भी सीखना चाहें हम सीख सकते हैं। और सेकंड चीज ये बताना चाहती हूँ कि ऑल स्किल्स इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। इसके बहुत छोटी और इजी मिसाल आप लोग को देती हूँ कि आप लोग में से बेशतर लोग साइकिल चलाना जानते होंगे, चलाते होंगे, या कभी सीखी जरूर होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइसिकल, जो दो पैरों से पेडल से चलती है। तो जब हम पहली दफा उस पर चढ़े थे, मैंने भी सीखी और मुझे बहुत मजा आता था, अभी भी कभी कभी मैं चलाती हूँ। तो पहली दफा जब चढ़े थे तो क्या हुआ, हम गिर गए थे। पहले वो सपोर्टिंग व्हील्स वाली साइकिल भी नहीं होती थी, तो हमें तो 2 व्हील्स वाली पर ही सीखना होता था, तो हम उस पे से गिर जाते। तब यहाँ दो चीजें हैं। When I fell down from that bike, अगर मैं उस दिन डर के और बैठ जाती, ये तो मुझे चोट लग गई, मेरा घुटना छिल गया, मुझे कहीं ना कहीं मेरे जख्म हो गया, तो अब मैं नहीं, कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाऊं, तो मैं कभी नहीं सीख पाती। दूसरा ये कि मैंने साइकिल खड़ी की, दोबारा चलाना सीखा और प्रैक्टिस रोज करती गई एंड फाइनली वन डे मैं फर्राटे भर रही। मैं तो वहां रुक गई, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इससे भी आगे प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ तक कि वो पिछले पहिए पे खड़े होकर साइकिल चलाने लगते हैं। कुछ लोग एंगल पे 45 डिग्रीज का एंगल सड़क से बना के चलाने लगते हैं। तो ये सब कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से आता है। तो ये चीज याद रखिए कि जो भी स्किल है या तो हम सीख सकते हैं, और अगर हमारे पास है और या सीखी है हमने, तो उसको हम यूं ही छोड़ नहीं सकते, उसको प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सो मुझे ये बताइए कि हम सॉफ्ट स्किल्स की बात क्यों कर रहे हैं। आप लोग प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आप यकीनन कुछ ना कुछ आगे करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स, अगर आपको कुछ आइडिया हो, पता ही होगा सॉफ्ट स्किल्स किसको कहते हैं, मैं आगे वैसे बताऊंगी भी, लेकिन अगर आपको मालूम है तो ये बताइए हम आज सॉफ्ट स्किल्स की बात क्यों कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया सी पढ़ाई करके निकलेंगे आगे, फिर आपको जो भी करना हो, 3 रास्ते होंगे मेनली आप लोगों के सामने। आप लोगों में से कुछ लोग शायद फैमिली इंडस्ट्री या फैमिली बिजनेस हो आपके कॉज से रिलेटेड, उसमें चले जाएंगे। कुछ हो सकता है जॉब में चले जाएं, कुछ शायद रिसर्च में भी जाएं, और कुछ हो सकता है अपना कोई बिजनेस शुरू कर दें, स्टार्टअप शुरू कर दें।
तो कुछ ना कुछ आप करेंगे, और अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तब भी ये स्किल्स आपके काम आएंगी। तो इस सब को जानते समझते हुए पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, तो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात क्यों कर रहे हैं? वो पढ़ाई तो आपकी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स की बात क्यों कर रहे हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई जवाब देगा? आप लोग चैट बॉक्स में जवाब डाल सकते हैं, सिंपल 1-2 वर्ड्स में। तो सॉफ्ट स्किल्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम द डोमेन नॉलेज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये स्किल्स बहुत जरूरी। अब ये कह कौन रहा है? मेरे कहने से तो बात बनती नहीं है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं। ये कह रही है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये डेटा आपके सामने है, जो लिखा है टॉप 10 स्किल्स ऑफ 2025। this report has been computed by an organization जिसका नाम है WEF for short, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आजकल बहुत न्यूज में था, जो आप लोग देखते होंगे तो देखा होगा, लेकिन हम इस ऑर्गेनाइजेशन की अलग से बात करते हैं। ये है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सॉफ्ट स्किल से क्या ताल्लुक है, उसकी बात मैं क्यों कर रही हूँ? सो ये जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा इन स्विट्जरलैंड, और it brings together political and business leaders every year. And what do? They discuss major issues that impact the global economy. ये इसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक फोरम है तो यही डिस्कशन होता है। इसमें से एक इशू है अनएम्प्लॉयबिलिटी, और उसके लिए ये क्या करते हैं? ये they map out the jobs and skills of the future. Then they track the pace of change, किस तरह से changes आ रहे हैं जॉब सिनारियो में या एम्प्लॉयबिलिटी के एरिया में, and then they show the direction that should be taken. So in that order it brings out a report every year, and according to the latest one, जो अभी ताजी रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे 50% of us, all of us who are in the job market, who are out to do business or do anything in a profession or a career, उनको रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जरूरत होगी in the next 5 years, 50%। और ये स्किल्स क्या है? The report has identified 10 major ones. ये 10 major skills आपके सामने हैं जो रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई की। इसकी पूरी रिपोर्ट आप लोग गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, which is going to help you. यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफली आपको ये सब बता रही हूँ। अब ये जो 10 स्किल्स हैं, they fall into 2 categories, hard skills and soft. तो यहाँ से हमारी बात शुरू होती। अब इनको हार्ड और सॉफ्ट में तो डिवाइड किया ही है, लेकिन फर्दर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। और जब ये डिवीजन हुआ, सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैज इमर्ज्ड, जो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर रही हूँ। तो अब ये 4 ग्रुप्स क्या हैं? द फर्स्ट ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा स्किल्स आइडेंटिफाइड हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत 5 स्किल्स आती हैं: एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, creativity, originality and ideation, taking initiatives and reasoning। इस सबको मैं धीरे धीरे आगे आपको समझाऊंगी, तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो 5 स्किल्स आ गई प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। सेल्फ मैनेजमेंट, अब ये क्या है? एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, 2 स्किल्स आ गई सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर। फिर वर्किंग विद पीपल, लोगों के साथ काम करना, इसमें आ गई लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस, एक स्किल। और लास्ट में टेक्नोलॉजी यूज एंड डेवलपमेंट, तो इसमें टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग, कंट्रोल, टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग, ये आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि आउट ऑफ द 10 स्किल्स, 8 स्किल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, और खाली 2 स्किल्स आती हैं हार्ड स्किल्स।
तो आप ये इससे समझ सकते हैं, मुझे ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है कि सॉफ्ट स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके फ्यूचर के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट से, बिकॉज जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं जाएंगे, नहीं लाएंगे, अपने को समझेंगे नहीं, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया तो बाद में समझेंगे, पहले अपने को समझना जरूरी, अपने को इम्प्रूव करना जरूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपने लिए है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब इसको भी फर्दर सेल्फ मैनेजमेंट को 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया है, 2 टाइप्स यहाँ पर भी है। एक सेट जो है that talks about self control, self regulation, managing your stress levels. This is the ability to control or regulate your emotions, आपकी thoughts, आपके behaviors, different situations में आप किस तरह react करते हैं, respond करते हैं, कैसे behave करते हैं, and being resilient and flexible, जो मैंने आपको पहले बताया था, read out किया था कि उनके skills में ये भी आते हैं। और जो दूसरा सेट है, that is defined as external skills, जैसे कि गोल सेटिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, सेल्फ मोटिवेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, और बहुत से हैं। इसमें आप अपने भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगता है आपको आगे चल के जरूरत होगी जिन स्किल्स की, आप अपनी लिस्ट खुद से तैयार कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लर्निंग से स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आफ्टर ऑल हमें स्किल्स या तो लर्न करनी है या इनको और एनहांस और पॉलिश करना है। और जैसा देखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल यही होने वाली है। जब अगर हम लर्निंग सीख जाएंगे तो बाकी सब स्किल्स बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब ये लर्निंग पिरामिड है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा एक नजर डालिए और आप लोग को सबको इंडिविजुअली समझ में आएगा कि आप किस तरह बेस्ट लर्न करते हैं। तो जब आप कोई लेक्चर सुनते हैं, और ये एक कंट्रोल स्टडी की गई थी जिसमें ये देखा उन्होंने कि रिटेंशन रेट, यानी कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं 24 घंटे के बाद। तो या इन्होंने तो 24 घंटे का किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपकी हमारी पूरी लाइफ में लागू होता है। जब हम कोई चीज सुनते हैं एज अ लेक्चर, लेक्चर मतलब हम सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है, जैसे इस वक्त हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि लेक्चर ना दूं, इंटरैक्टिव बनाऊं, लेकिन अभी कुछ बातें समझानी जरूरी है। तो व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग, उसमें से 5% ही आप रिटेन कर पाएंगे 24 घंटे के बाद, ये एक्सपर्ट्स का कहना है, हो सकता है ज्यादा भी हो। एंड इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप लोगों में से जिनकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है, वो ज्यादा भी रिटेन कर सकते हैं, और जिनको लेक्चर सुनना इंटरेस्टिंग लगता है वो ज्यादा भी रिटेन कर सकते हैं। लेकिन ये स्टडी की हम फिलहाल बात करते हैं। व्हेन यू रीड समथिंग तो 10% रिटेंशन रहता है 24 घंटे के बाद। ऑडियो विजुअल आपको दिख भी रहा है और सुन भी रहा है। जैसे गाना देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसका रिटेंशन 20% होता है। या कोई आप उस पे सुन रहे हैं, कोई लेक्चर ही सुन रहे हैं जिसमें आपको दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। और फिर अगर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, आपके सामने प्रैक्टिकली कोई चीज करके दिखाई जाती है, 30% होता है। अगर वही चीज टॉपिक आप ग्रुप डिस्कशन में लेते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, तो 50% आपको याद रह जाएगा। अगर आप उसको करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी आपने सीखा है अपनी लाइफ में, उस पर वर्क करने लगते हैं, तो 75% रिटेंशन रहेगा, आप उसको याद रखेंगे जब आप उसको खुद से करने लगेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग है व्हेन यू टीच अदर्स, जब आप दूसरे को वही चीज जो आपने सीखी है या समझी है पढ़ाएंगे, तो उसका रिटेंशन 90% है। तो ये विन विन सिचुएशन है, आप खुद भी सीख रहे हैं और किसी दूसरे को भी सिखा रहे हैं। दिस इज रियली ऑसम। सो ये लर्निंग पिरामिड है जिसपे मैंने अभी बात की, और अब इस पे और बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना देख सकते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे दैट यू लर्न, और उस तरह उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। कुछ लोग लिख के करते हैं, कुछ लोग सुन के करते हैं। आप देखिए आपकी लर्निंग किस तरह से अव्वल तरीके से होती है, सबसे अच्छी होती है, और उसी से आप अपना सारा लर्निंग प्रोग्राम उसके ऊपर बेस कीजिए। अब लर्निंग स्किल की नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लर्निंग स्किल की तो हमने बात कर ली, अब इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं।
तो वही जो चीजें डिस्कस की हैं, एक तो वो पिरामिड दिखाया, उन्हीं में से जो आपको सूट करता है उसके बेसिस पे आप लर्न कर सकते हैं। और एक कोट है एल्विन टॉफलर का, जो उसने बताया है, जो हमने अभी रीस्किलिंग, स्किलिंग एंड रीस्किलिंग की बात की थी, उसके बेसिस पे उसने कहा है, द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी, जो ये जिसमें हम हैं इस वक्त, will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. यानी कि इलिटरेट अब वो नहीं होगा जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, हर किसी को आ जाए, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। वो लोग इलिटरेट अब कहलाया करेंगे जो सीख नहीं पाते, लर्न नहीं कर पाते, और जो सीख गए अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको अनलर्न नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद उस कोई नई चीज को रीलर्न नहीं कर पाते। Those will be the true illiterates. और मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी भी उस कैटेगरी में हैं, but this just demonstrates or shows the importance of learning skills. इसीलिए मैंने सबसे ऊपर इनको रखा है। तो अब इसको और फर्दर कैसे एनहांस कर सकते हैं आप अपनी लर्निंग स्किल्स? एक तो प्रैक्टिस से, जैसे मैंने बताया, हर स्किल के लिए मैं ये बताऊंगी आपको कि प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, उसमें सिर्फ आपको वक्त देना है। तो वो किस तरह के कोर्सेज लर्निंग में आपको हेल्प करेंगे? स्पीड रीडिंग का कोर्स आता है, मेमोरी बूस्टिंग कोर्सेज हैं, एक्सेलरेटेड लर्निंग कोर्सेज हैं। ये सब अगर आपको मिलते हैं, आपके पास वक्त है, तो आप अपनी लर्निंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। और पेड कोर्सेज तो ऑफ कोर्स हैं ही, ये मैं फ्री कोर्सेज की बात कर रही हूँ। कॉर्सेरा है और बहुत सी ऐसी आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो फ्री कोर्सेज ऑफर करते हैं। गूगल के बहुत से फ्री कोर्सेज हैं जिनमें वो आपको, उसमें तो सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आप सर्च कीजिए, देखिए, आप अगर कोई कोर्स करके अपनी कोई भी स्किल एनहांस करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। फिर जो सबसे नीचे इंटरेस्टिंग पॉइंट था, टीचिंग। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप सीख रहे हैं, आप अपने क्लासमेट को, अपने पीयर ग्रुप में किसी को भी आपकी हेल्प की जरूरत हो, जब आप उसको सिखाने चलेंगे तो आपको खुद अपने को इतना माहिर करना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो दैट इन इटसेल्फ विल इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर थिंग्स। नेक्स्ट प्लीज। अब लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पर्सनालिटी ग्रूमिंग, क्योंकि सबसे पहले हमारा इंप्रेशन बनता है किसी को देखकर। कोई जब हम देखते हैं, पहला इंप्रेशन वही बन जाता है। तो इसके लिए इसका क्या मतलब है? दिस इज, सम पीपल कॉल इट द आर्ट ऑफ लुकिंग स्मार्ट। यहाँ पर कपड़ों का या महंगे कपड़ों का या ब्रांडेड कपड़ों का इनका मतलब, इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है लुकिंग योर बेस्ट, लुकिंग स्मार्ट, which also shows a smart mind. A smart personality always shows depicts a smart mind. So यहाँ पर ये सिर्फ लुक्स तक नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि इफ आई एम लुकिंग गुड, मैंने अपने बाल बढ़िया से बना लिए और वेल मेंटेन स्किन है, तो आई विल बी कॉल्ड वेल ग्रूम्ड, बट दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअल मीनिंग जो ग्रूमिंग का है वो इससे कहीं ज्यादा है। You can only look completely groomed when you are likable, you are interesting, and you are pleasant to be around with. तो अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हो वो आपको पसंद करते हैं, आपको के साथ रहना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्टिंग, आप उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं, तभी, अपार्ट फ्रॉम योर अपीयरेंस, जो कि इम्पोर्टेंट है, अनडिनायबली अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, staying neat and tidy is very important, लेकिन वो in itself is not enough. आपकी पर्सनालिटी भी प्लेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक हमारी हैप्पीनेस और हमारी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है उस पर कि हम दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सो पर्सनालिटी ग्रूमिंग हियर मींस एवरीथिंग, इनसाइड एंड आउट। आउटवर्ड अपीयरेंस तो बहुत इजी है करना, लेकिन अंदर से हम कैसे अपने को तब्दील करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? सबसे पहले अपने एटीट्यूड से। सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिलीव इन योरसेल्फ, रीड
जब आप रीडिंग करेंगे तो आप बहुत नॉलेज, आपको बहुत चीजों के बारे में होगी। वही चीज रीड कीजिए जिससे आपको, जिसको आप इंटरेस्टिंग जो आपको लगती है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीडिंग जरूर कीजिए ताकि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हो जिसपे लोग आपसे बात कर सकें। जब आप बात करने बैठे, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, कुछ आपके पास होना चाहिए बात करने के लिए, और जिसपे आपको महारत होनी चाहिए। तो उस पे आप ओपिनियन रखते हो, तभी आपसे लोग इंटरैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो उनको मजा आएगा। देन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि जो आप कपड़े पहनते हैं बहुत जरूरी है। ब्रांड की नहीं बात हो रही है, महंगे कपड़ों की बात नहीं हो रही, बट वेल प्रेजेंटेड। अगर कुर्ता पहने हैं तो वेल आयरन्ड हो, साफ सुथरा हो। अगर हम शर्ट पहने हैं तो उस पे शिकन ना हो, दुपट्टा है तो वो बेशिकन हो। इस तरह, दैट इज व्हाट ड्रेसिंग वेल मीन्स। अपने मैनर्स प्लेजेंट रखिए, साथ साथ अपने स्किन का, अपने बालों का, अपनी फिजिकल फिटनेस, इसका भी ख्याल रखिए, पोस्चर सही रखिए। ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। ये तो सुन्नत भी है, मुस्कुराना सुन्नत भी है। और किसी एक एक्सपर्ट ने, अमेरिकन जर्नलिस्ट है ह्यू साइडी, उसने कहा है कि व्हेन यू हैव लाफ्टर ऑन योर लिप्स, इट इज अ साइन दैट द पर्सन डीप डाउन हैज अ प्रिटी गुड ग्रास्प ऑफ लाइफ। सो इट इन्वोक्स कॉन्फिडेंस। लोगों को जब आप मुस्कुरा के किसी से मिलते हैं तो वो, उसको अभी अच्छा लगता है और वो कॉन्फिडेंट फील करता है आपके सामने, एंड ही रिपोजेस कॉन्फिडेंस इन यू एंड यू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन हिम। तो मुस्कुराना, अपना डिमीनर प्लेजेंट रखना, ये बहुत जरूरी है। ये सब चीजें ग्रूमिंग के अंदर, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के अंदर आ जाती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम मिल लिए किसी से, पहला इंप्रेशन पड़ गया उसके कपड़ों से, उसके स्माइल से, एटसेट्रा। अब हम करेंगे आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी है तो बीच बीच में मैं अपने को म्यूट करूंगी, सो प्लीज बेयर विद मी। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इसका बेसिक मकसद क्या है? इट इज, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड पीपल एंड इट हेल्प्स अदर्स टू अंडरस्टैंड यू। आदान प्रदान है बातचीत का। हम बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दूसरा आपको समझता है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं आपकी? आप अपने आइडियाज कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, फीलिंग्स कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना जरूरी है। इफ यू नीड टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको एक्टिव लिसनिंग स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ अगर बोलते रहेंगे, कुछ दिनों बाद हमसे कोई भी बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हम किसी की सुन ही नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी बोले जा रहे हैं। तो active listening is an important part of communication skills. फिर आपको दूसरे से empathize करना, उसको clearly observe करना, giving and receiving feedback. उसको अगर कुछ बताना है तो अच्छी तरह आप बताएं, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है तो आप उसको अच्छे से सुने, even if it is criticism. You will need to learn all these things. इसके डिफरेंट मोड्स क्या है? मेन कैटेगरीज इसकी दो हैं, एक तो वर्बल जो हम बोलते हैं, और एक नॉन वर्बल जो कि हम फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, इससे पता लग जाता है। और वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? जैसे एक तो सामने बैठ के जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, फेस टू फेस इंटरेक्शन है। फिर फोन पे हम लोगों से बात करते हैं, फिर डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, फिर ईमेल और सोशल मीडिया पे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो अब तो बहुत सारे मोड्स आ गए, लेकिन मेन जो है वो यही दो है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें देखिए, ये चार पिक्चर्स हैं यहाँ पर, और जो मैं अभी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही थी और जेस्चर्स की बात कर रही थी, बहुत क्लियरली, ये हालांकि कार्टून्स हैं, ये तो लाइव पीपल भी नहीं है, फोटोग्राफ्स भी नहीं है, लेकिन इससे भी आपको पता लग रहा है कि कौन हैप्पी कॉन्वर्सेशन कहाँ हो रहा है और नाराजगी का इजहार कहाँ पे हो रहा है। जो वो दो बच्चे बेंच पे बैठे हैं, उनको जरा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रही है। तो आप ये देखिए, कार्टून में इतनी सलाहियत है, किसी ने ये इसको ड्रॉ किया है कि हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा होगा। एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हम जो अशरफुल मखलूकात हैं, जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं तो कितना पावरफुल मैसेज हम देते हैं। किसी के से नाराजगी का इजहार करना है तो कितना पावरफुल मैसेज हम दे सकते हैं, जस्ट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज। हमको बोलने की जरूरत नहीं। या हम किसी से अगर खुश हैं तो हम किस
खूबी से उसको ये बात कन्वे कर सकते। तो ये कम्युनिकेशन इज I feel the second most important skill that we need to, सबके अंदर है, we need to polish and enhance it. Next please. अब इसको कैसे improve कर सकते हैं? So verbal conversation के लिए 7 C's कहा जाता है कि communication, कुछ लोग 8 भी बताते हैं, लेकिन हम यहाँ 7 की बात करते हैं बहुत briefly. Clear and coherent, मतलब बिल्कुल साफ साफ बोलिए जो आपको कहना है, घुमा के बात नहीं करनी है, और मुंह को अच्छी तरह मुनमुनाना नहीं है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर कोहेरेंट आपकी स्पीच होनी चाहिए, which makes it easy to understand. दूसरा, आपकी बात बहुत आसानी से समझ सकेगा। कंसाइज, ब्रीफ, जितना जरूरत है उतना बोलिए, इट विल सेव टाइम। इट हैज टू बी कंप्लीट, करेक्ट एंड कॉन्क्रीट। तो फैक्चुअल बात कीजिए, हवा में बात मत कीजिए। अगर कुछ आप फैक्ट कन्वे कर रहे हैं तो सॉलिड, आपको पूरा इत्मीनान है, आप मुतमईन है कि सही बात बताने जा रहे हैं, तभी कन्वे कीजिए, नहीं तो उसे नहीं बताइए। दैट विल एनजेंडर ट्रस्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि वो हमेशा सही बात बोलता है। अगर उसको पता नहीं होता तो वो बोलता नहीं, बताता नहीं, वो कह देता है कि मुझे ये बात नहीं पता। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, आप ट्रस्टवर्दी कहलाते हैं। और फिर कर्टियस, अच्छी तरह, कायदे से, मुस्कुरा के, तो वो उसमें फिर रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं। जैसे सॉफ्ट स्किल्स में जब फर्स्ट सवाल मैंने किया था कि क्यों इसकी जरूरत है, तो पहला जवाब यही आया था कि इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स। सो दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स इंप्रूव, व्हेन यू कम्युनिकेट वेल, व्हेन यू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जब हम बात करें तो लेट अस हैव आई कांटेक्ट विद द अदर पर्सन। और जैसे मैंने कहा, स्माइलिंग की इम्पोर्टेंस तो स्ट्रेस की ही नहीं जा सकती, जितना स्ट्रेस की जाए कम है। सो दैट विल कन्वे, इफ यू आर स्माइलिंग एंड यू आर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, तो दूसरे को पता लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं उसकी बात में। देन यू कैन नॉड योर हेड थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि पता चले कि हाँ, इसको सुन रहा है, समझ भी रहे हैं। थोड़ा सा आगे झुक के आप बात सुन सकते हैं, तो इससे कन्वे होता है कि आप अटेंटिवली बात को सुन रहे हैं। फिर जो आपका टोन ऑफ वॉइस है, दैट शुड मैच विद योर मैसेज। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अगर कहूँ आप जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं एक चीज बता रही, एक फैक्ट बता रही हूँ कि कोई जा रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि उस पर्सन को कह रही हूँ कि आप जा रहे हैं। इसी को अगर मैं टोन बदल दूं और कहूं आप जा रहे हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन में तब्दील होगी। तो इस टोन से सुनने वाला इसी स्टेटमेंट को दो तरह से कहा जा सकता है। सुनने वाला टोन से समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या मैं सवाल पूछ रही हूँ या स्टेटमेंट है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हम लोग अक्सर मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं क्योंकि हमारा टोन ऑफ वॉइस सही नहीं होता। हम अपने हिसाब से तो सही बोलते हैं, लेकिन दूसरा कभी कभी गलत समझ लेता है क्योंकि हमारा टोन सही नहीं होता। तो इस पे भी ध्यान देना, ख्याल रखना इसका बहुत जरूरी। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव दीज स्किल्स। नेक्स्ट प्लीज। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल पे, जो कि है एम्पथी। की जरा सी ऊपर भी मैंने बात की थी, और ये मेजर जो 10 मेजर स्किल्स हैं उसमें एम्पथी भी आती है। नाउ एम्पैथी है क्या? कभी कभी इसको सिंपैथी से लोग कंफ्यूज करते हैं, बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट। सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है। सिंपैथी में क्या होता है, आप को अगर कोई, मान लीजिए कोई ऐसी बात बताता है, कोई दुख भरी बात बताता है, तो आप सैड हो जाएंगे, आप उसके साथ सिंपथाइज करेंगे, उसको बताएंगे कि आपको बुरा लगा ये सुन के। एम्पैथी उससे एक कदम आगे है, और उसमें क्या होता है, लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है कि आप इंग्लिश में कहते हैं वॉकिंग इन अनदर पर्सन्स शूज, यानी कि आप अपने को दूसरे की जगह रख के तब इमेजिन करें कि वो किस चीज से गुजर रहा है या उसके साथ क्या हुआ है। अब खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात है, कोई परेशानी वाली बात है, और आप भी उस परेशानी से पहले गुजर गए हैं, आपके लिए एम्पथाइज करना बहुत ईजी होगा,
क्योंकि आप पे वो बीत चुका है, तो आप जानते हैं कि उसको क्या महसूस हो रहा है। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि हमको नहीं पता कि उस पर्सन किस चीज से गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। वहां पर ये स्किल हमको सीखना जरूरी है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट स्किल फॉर द फ्यूचर. So, walking in another person's shoes, entering into another person's frame of reference, having the ability to experience life as the other person does. ये जो मैंने अभी बताया इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग बताया है. और एक चीज और इसमें होती है जो छोटा सा एक आपको कहानी सुनाऊंगी. मुझे कहानियां बहुत पसंद है. मैं तो 2-3 कहानी भी आप लोग को सुनाऊंगी कि ये कभी कभी आपको एक फ्रॉड से भी बचा सकता है, नुकसान से भी बचा सकता है. वो कैसे? हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एक कहीं पे गए हुए थे घूमने के लिए, और एक बहुत अच्छी फैमिली, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, 2 बच्चे और हस्बैंड एंड वाइफ हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, घूमने आए थे. हमारा एक बैग खो गया, पाउच खो गया, जिसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारा कैश था, सारे कार्ड्स थे, सारा एवरीथिंग दैट वी हैड, सब चीज, हमारी शनाख्त, हर कुछ उस बैग में था. वो गुम हो गया, किसी ने चुरा लिया, खो गया, जो भी. तो अब हमको पैसे चाहिए ताकि हम यहाँ पहले तो खाना खा सके. हमारे पास कुछ है ही नहीं, खाना भी खाना है, ठहरना है, फिर वापसी की टिकट का इंतजाम करना है, और फिर हमें वापस घर जाना है. तो इतने सारे, हम गैर मुल्क में पड़े हैं, ये सब हमारे साथ हुआ है, तो बहुत बड़ा खर्चा था. तो हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए इनके साथ. एंड देन वी एम्प्लॉयड द स्किल ऑफ एम्पैथी. एंड व्हाट डिड वी डू? हमने सोचा कि अगर हम इनकी जगह, ये किसी के भी साथ हो सकता है, एक हमने बैग, अभी तो लोग अलग अलग सब चीज रखते हैं, एक ही जगह नहीं रखते, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चीज खुदा न खास्ता चोरी हो गई तो सब कुछ गया. तो अगर इतने इंपॉर्टेंट चीजें तो उनको बिखरा के अलग अलग रखना चाहिए. तो हमने सोचा कि अगर हम इनकी जगह होते और खुदा न खास्ता हमारे साथ ये हादसा हुआ तो हमारी सब चीजें गायब हो जाती, तो हम क्या करते. और वो सोच के फिर हमने उन फैमिली से बात की और उनसे कहा, आपका फर्स्ट मसला है कि आपको अभी भूख लगी, आपको खाना खाना है, तो हम खाना खाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ बैठ के खाना खा लीजिए. नेक्स्ट मसला है, आपको ठहरना है, आपके पास रूम लेने का, उसमें रुकने का खर्चा नहीं है, हम आपको ले जाएंगे एक जगह, होटल में कमरा दिला के वहां आपको ठहरा. थर्ड, आपको अपने मुल्क वापस जाना है, आपके पास पेपर्स नहीं है, पासपोर्ट गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया, कैसे जब वापस जाएंगे? तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको एम्बेसी लेके जाएंगे. हर कंट्री में एम्बेसी होती है, जो इसी पर्पस के लिए होती है कि किसी, कोई नागरिक अगर वहां पे परेशान है तो वो सीधा वहीं जाता है, और वहां से हम आपके सारे पेपर्स निकलवा के, डुप्लीकेट्स बनवा के, टिकट का अरेंजमेंट करके आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे. एंड हाउ डिड दिस वर्क? कैसे हुआ ये? हमने एम्पथाइज किया, हमने अपने को उनकी जगह रखा और सोचा कि अगर हमारे साथ खुदा ना करे ऐसा हो तो हम क्या करेंगे. क्या हम सड़क पे खड़े होकर लोगों से मदद मांगेंगे, या हम सीधे एम्बेसी जाएंगे और वहां जाके कहेंगे हमारे साथ ये हुआ. और एम्बेसी में होता है, बहुत लोग जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पेपर्स नहीं है, खो गए, कब गुम हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा. एम्बेसी हेल्प करती है, उनको वापस घर पहुंचाती है. और इधर ये फैमिली का क्या हुआ, वो हम पे नाराज हो गए. क्यों? उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको लग रहा हम झूठ बोल रहे हैं. ऐसा नहीं है, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं. और वो चले गए. तो मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन हम एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच गए, बहुत बड़े नुकसान से बच गए. सो दिस इज हाउ एम्पैथी विल हेल्प यू इन डिफरेंट वेज. आपको अपने को दूसरे की जगह रख के सोचना होगा. उस ये सलाहियत आप में पैदा हो जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. अब इस स्किल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? यू नीड टू चैलेंज योरसेल्फ. एक सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कोई आपसे बात करता है, अपने को उसकी जगह से रखिए और सोचिए कि जो हम लोगों ने किया, कि हम क्या करेंगे अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं, तो हम क्या करेंगे. एक बहुत अच्छा तरीका ये है. लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे हालात आपके सामने आए, और हो सकता है पूरी जिंदगी गुजर जाए, ऐसा कोई आपके सामने सिचुएशन ना आए. तो व्हाट आर द अदर वेज यू कैन डेवलप दिस स्किल?
अगर आप में कोई बायस है, किसी के बारे में आप कुछ ख्याल रखते हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन, बगैर उसको समझे हुए, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए। मैं क्यों सोचता हूँ ऐसा, ये मैं क्यों सोचती हूँ इसके बारे में ऐसा। अपने सवाल पूछिए खूब सारे, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। लोगों की सुनी सुनाई बात पे यकीन मत कीजिए, खुद से एक्सपीरियंस करके तब सीखिए। तो ये आपकी एम्पैथी की स्किल बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी। और तरीके सोचिए किस तरह से आप ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल पे, और ये है रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, if I say you are reliable, it means that you are dependable। और उसको भी और अगर सिंपल करें तो ये कहा जाएगा कि you will do what you say you will do। अगर आपने कह दिया है कि मैं ये काम करूंगा, तो आप करेंगे उसको। अगर मुझे ये यकीन आप पर है, तो आप एक रिलायबल पर्सन है, आपके अंदर रिलायबिलिटी ये स्किल मौजूद है। इसका एक मतलब और भी होता है कि आप अपने चारों तरफ देखें, अगर कोई काम करने लायक है तो उसको कर दें। दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द स्किल ऑफ रिलायबिलिटी। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें और बहुत सी स्किल्स इसके साथ मिली होती हैं, और वो ज्यादातर पर्सनल होती है। इसको किस तरह डेवलप किया जा सकता है, उस पर एक नजर डालते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसको कैसे इम्प्रूव करें? You need to consistently meet or exceed your expected levels of work performance। आप जो भी आपको करना है, as students आपको जो पढ़ाई करनी है, जो आपको होमवर्क करना है, जो आपको क्लास वर्क करना है, वो तो बेशक आप कीजिए ही। जो भी असाइनमेंट आपको करना है वो आप कीजिए, लेकिन उससे एक लेवल और आगे बढ़ के कीजिए। आपकी रिलायबिलिटी स्किल बढ़ेगी। अपने लिए एक स्केड्यूल तैयार कीजिए कि डेली आपको क्या करना है, किस तरह से उसको मेंटेन कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स। अगर आप गलती करते हैं तो उसको मानिए। लर्न टू से आई एम सॉरी, ये मैजिक वर्ड्स हैं। और कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि आगे से आप ये नहीं करेंगे गलती। जो लोग गलती मान लेते हैं उनकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो उनको देख रहा है, जिससे वो डील कर रहे हैं, उसको ये पता रहेगा कि अगर ये गलती करेगा तो ये सॉरी कह देगा और ये बता देगा कि हमसे गलती हुई है। तो आपकी रिलायबिलिटी बढ़ गई। कभी ऐसा होता है कि आप कुछ गलती करें और कोशिश करते हैं कि इसका ब्लेम हम दूसरे पे शिफ्ट कर दें, हमको सॉरी ना कहना पड़े, हम दूसरे पे डाल दें इसको। तो एक चीज याद रखिए यहाँ पर, ऑल मिस्टेक्स आर forgivable if you have the courage to admit। कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो माफ नहीं की जाएगी। आपके अंदर ये करेज होनी चाहिए कि आप उसको एडमिट करें। अगर आपसे गलती हुई है, आप एडमिट करेंगे, बिलीव मी, आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। So these are the different ways you can improve this skill. Next, please. अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्किल, जिसके अंदर हमने देखा था कि 5 स्किल्स इसी के अंडर में आ जाती है। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में डेवलप हो गई, तो और बहुत सी इससे रिलेटेड स्किल्स भी आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगी। तो इसका मतलब है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है? इट्स अ प्रोसेस। सो पहले तो आप डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम है क्या, फिर देखेंगे कि उसका कॉज क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, फिर उसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे, या एक ही से ज्यादा है तो एक से ज्यादा सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। फिर उसमें से आप चूज करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, और एक कोई सिलेक्ट करेंगे, और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो वापस जाइए, उससे सोल्यूशन नहीं निकला तो आपने लिस्ट बनाई थी सॉल्यूशंस की, गो बैक, चेक योर लिस्ट, देखिए कोई सेकंड सॉल्यूशन है तो उससे शायद सॉल्व हो जाए, उसको कीजिए। इसमें कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं व्हेन यू डू दिस? जो मैंने पहले भी बताई थी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब स्किल्स आगे चल के बहुत जरूरी होने वाली, अभी भी हैं, लेकिन आगे और ज्यादा इनकी अहमियत होगी, इनकी और ज्यादा डिमांड होगी। अब बहुत सारा लेक्चर हो गया, थोड़ा सा अब आप लोग
नींद से जागे। एक ये आप देख रहे हैं, एक रिवर है, कैन दे क्रॉस, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोग को सबको नजर आ रहा है? अच्छा, चलिए मैं मान के चल रही हूँ कि आपको दिख रहा है। एक रिवर है, रिवर के एक तरफ तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन दे क्रॉस, और दूसरी तरफ एक नाव है। ओके, ग्रेट, थैंक यू मोहम्मद मुजाहिद, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। सो बोट है, एक फार्मर खड़ा है, उसके पीछे एक मुर्गी है, एक बैग है, वो उसका चावल का बैग है, और एक ये डॉग है, वुल्फ है, चलिए वुल्फ मान लेते हैं इसको। तो ये चार, एक नाव है और चार लोग और चीज है। टास्क ये है, आप लोग सोचेंगे और मुझे जवाब देंगे। एक्सक्यूज मी। टास्क ये है, इस फार्मर को ये रिवर क्रॉस करनी है बोट में। एक तो वो खुद रहेगा हमेशा, हर बार खुद उसको रहना होगा क्योंकि चप्पू तो वही चलाएगा, और उसके साथ उसमें एक कोई और हो सकता है। वो बोट में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना वेट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तीनों या दो भी एक साथ जाएं। एक बार में एक ही को वो दूसरी तरफ ले जा सकता है, और सबको उसको सेफली दूसरी तरफ पहुंचाना है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहले वो किसको लेकर जाएगा। सो देयर इज अ hen, देयर इज अ राइस बैग, तो आप सिर्फ राइस कह सकते हैं, और देयर इज दिस। If someone wants to speak, they can use my mic. हाँ, अगर कोई पूरी बताना चाहे तो वो माइक लेके बता भी सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। तो अगर कोई बोलना चाहता है तो बोले, नहीं तो कुछ लोग टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने कहा है फॉक्स विल गो फर्स्ट। ठीक है, आई विल वेट फॉर मोर रिस्पॉन्सेस, फिर मैं बताऊंगी। पहले मुर्गी लेके जाएगा, फिर वापस आके चावल ले जाएगा, फिर मुर्गी वापस ला लेगा, फिर फॉक्स लेके जाएगा, और फिर वापस आके मुर्गी लेके जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आपको पहले से पता था, है ना? जी बताइए, कौन बोला? आप अपना नाम बताएंगे जिन्होंने जवाब दिया है। करीम। करीम, करीम साहब, आपको पहले से पता था? जी जी, पता था। वेरी गुड, चले कोई बात नहीं। अब वजह भी बता दीजिए, ऐसा क्यों करेगा? किसी वो ने कहा फॉक्स विल, अगर अच्छा फॉक्स वेट, ले जाएगा तो मुर्गी हाँ, चावल खा लेंगी, वेरी और गुड, चावल ले जाएगा तो फॉक्स मुर्गी को खा लेगा, मतलब। करेक्ट, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। तो हाँ। जो कुछ लोग कह रहे थे फॉक्स को फर्स्ट ले जाएगा, तो आप लोग समझे, अगर फॉक्स को पहले ले जाएगा तो मुर्गी चावल खा जाएगी, और मैंने क्या कहा था कि सबको सेफली दूसरी तरफ पहुंचना है। तो वेरी गुड, करीम साहब को पता था। मैं ये कहना भूल गई कि जिसको पता हो वो ना बोले, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट लेवल पे हम देख लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह के आप बहुत से पजल्स, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी डेवलप करनी है तो प्लीज गो एंड फाइंड प्रॉब्लम्स लाइक दीज। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, गूगल सर्च करेंगे बहुत से मिल जाएंगी, उनको कीजिए। न्यूज़पेपर में सुडोकू एक गेम आता है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो आपको दिखेगा। उसके अलग से बुक्स भी आती हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अब तो आप फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स। चलिए, अब इनको कैसे इम्प्रूव करेंगे, नेक्स्ट प्लीज। तो बहुत सारे तरीके हैं इसका, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, और पजल्स और गेम्स आप खेलें, जैसे मैंने अभी बताया न्यूज़पेपर वगैरह में। इसका जरा सा अभी क्विक एक रिव्यू इस गेम को खेलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, आपके सामने कुछ आपको क्यू दे दिया गया, एंड यू आर आस्क्ड टू गिव सॉल्यूशंस क्विकली विद इन, जो फर्स्ट चीज दिमाग में आ रही है वो बोलना है, उसमें टाइम नहीं दिया जाता है, उसीलिए उसको स्टॉर्मिंग कहते हैं कि तूफान की तरह से फटाफट फटाफट आप जवाब दीजिए। दैट ब्रिंग डेवलप्स योर एजिलिटी ऑल्सो, क्या कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। एक चीज यहाँ मैं और बताऊं कि जितनी स्किल्स की हम बात कर रहे हैं ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक स्किल जब आप डेवलप करना कोशिश करते हैं या शुरू करते हैं, उसको पॉलिश करने लगते हैं, आप उसके साथ साथ बहुत सी और स्किल्स भी आपकी डेवलप होने लगती हैं।
सो यू कैन आइडेंटिफाई कौन सी स्किल आपको पसंद है, कौन सी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको ज्यादा पॉलिश कर लीजिए। जो आपको लगता है कि आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उनको जरा बैकग्राउंड में रखिए। लेकिन होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सब स्किल्स आपके अंदर किसी ना किसी लेवल पे मौजूद जरूर। ओके, नाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हम ये देख रहे हैं सामने हमारे क्लोथ्स पिन्स हैं, ये चुटकी है जैसे कपड़े को टांगते हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स में भी डालें। इसका एक काम तो हमें पता है कि इसको हम कपड़े हवा में ना उड़े इसलिए इसको लगा देते हैं ताकि वो उड़ के दूर ना चले जाए। और इससे क्या क्या हो सकता है। नाउ दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, सो जल्दी जल्दी आपको बताना है कि और आप किस चीज में इसे यूज कर सकते हैं। इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, ये आप मान लीजिए जो भी आप जवाब देंगे वो सही होगा, बट इट शुड मेक सेंस, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि इसको हम चाय में घोल के पी जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। पेपर लगाने के, वेरी गुड, पेपर को जमा करने के लिए, एक्सीलेंट, क्राफ्ट में यूज हो सकता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए। क्राफ्टिंग, यस ऑफ कोर्स, क्राफ्ट में बहुत तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इतना कलरफुल है तो कोई क्राफ्ट पीस को चिपका के या किसी तरह एक से एक मिला के इसकी चेन भी बन सकती है, वो भी क्राफ्ट वर्क में आ जाएगा। सो अगर आप सोचने बैठेंगे तो और बहुत सी चीजें आपको समझ में आ सकती हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, किस तरह से होता है, किस तरह से होना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है किसी के सामने, वो रख दी जाती है, लोग चारों तरफ बैठते हैं एंड दे क्विकली कम अप विद सॉल्यूशंस, या तो वर्बली बताते हैं या लिख के जॉट डाउन करते रहते हैं कि इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर उन्हीं में से कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है, इकट्ठे होके एक सॉल्यूशन बन जाता है। दे आर वेरियस वेज। अब नेक्स्ट आपके सामने मैच स्टिक्स दिख रही हैं, आप लोग को नजर आ रही है मैच स्टिक्स? कोई बताएगा इस पे क्या लिखा हुआ है? मैच स्टिक से क्या लिखा है? थोड़ी हल्की है, शायद क्लियरली ना समझ में आए, बट कोशिश करके बताइए। किसी को भी समझ में आ रहा है क्या लिखा है? 6 minus 6 is equal to 8. परफेक्ट, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, इसमें यही लिखा है 6 minus 6 is equal to 8. ओके, नाउ चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको सिर्फ एक मैच स्टिक हटानी है ताकि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए, ये इक्वेशन सही हो जाए, दोनों तरफ की वैल्यूज एक हो जाएं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी, जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं वो लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन सी मैच स्टिक? 8 के बीच वाली, वेरी गुड। मार्स, किसने बताया? हाँ, बहुत लोग ये बता रहे हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। 8 के बीच वाली स्टिक हटा देंगे तो दोनों तरफ इक्वेशन इक्वल हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 वाली, किसी ने कहा 8 वाली। अब 8 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स हैं, 8 है, 3 3 6 7 स्टिक्स हैं। तो आपको ये बताना जरूरी है कि कौन सी स्टिक हटानी है। अगर आप कहेंगे सिर्फ ये कहते हैं कि 8 वाली स्टिक हटानी है, तो कौन सी? 8 में तो 7 स्टिक्स हैं। सो राइट कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया था, कोहेरेंट, क्लियर, उसमें जो आप अभी सिर्फ आप बीच वाली कहेंगे वो भी काफी नहीं होगा, आपको पूरी बात कहनी होगी। 8 में सेंट्रल वाली, वेरी गुड हमजा काजी, ग्रेट, बिल्कुल सही। सो दिस इज हाउ वी इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे समझ में आना चाहिए जो आप कहना चाह रहे हैं, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ you can improve these skills by practicing them. Again, ये सारे गेम्स मैंने उसमें से निकाले हैं, इंटरनेट से लिए हैं, आप भी वहां से, और बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। जब वक्त मिले, अगर ये स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं तो वहां से क्यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्रिएटिविटी, ये स्किल बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाली, और ये पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने देखा था कि क्रिएटिविटी कितनी मौजूद है हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। किस तरह लोग क्रिएटिव हो गए एक मास्क को लेके। यहाँ पे 14 टाइप के मिले मुझे,
तो मैंने डाल दिए। एक मैं पत्ते वाला ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल नहीं पाया। आदिवासियों ने ये बड़े बड़े पत्ते लेके उनसे मास्क बनाया था, बिकॉज उनके पास मशीनें नहीं होंगी, सुई धागा भी शायद ना हो, और कपड़ा नहीं होगा या फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, तो उन्होंने इतने इनोवेटिव, इतने क्रिएटिव पत्तों से मास्क बनाए। So this is again a skill which is going to be in great demand in the future. So इसका क्या मतलब क्या है? आपके पास आइडियाज हो सकते हैं, यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, यानी कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन जब तक आप उसको उस पे आप एक्ट नहीं करेंगे, उससे कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक वो क्रिएटिविटी में नहीं आएगा, तब तक वो आइडिएशन में ही रह जाएगा, एक आइडिया ही रह जाएगा। सो क्रिएटिव होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कोई चीज इमेजिन करें और फिर उसको तख्लीक भी करें, उसको बनाएं भी। तो इसमें दो प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं, एक तो थिंकिंग, यू शुड हैव द आइडिया, एंड देन क्रिएटिंग और प्रोड्यूसिंग। तो दोनों मिलकर आपकी ये स्किल तैयार होती है। अब इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो मैं फिर एक आप लोगों को तस्वीर दिखाती हूँ, ये क्रिएटिविटी कैसे इम्प्रूव करें। इस साइकिल को देखिए, ये मान लीजिए मेरी साइकिल है, मैंने इसको चला लिया, अब मैं नहीं चला पाती या नहीं चलाना चाहती मैं, लेकिन क्योंकि मेरे बचपन की साइकिल है तो मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहती, किसी को देना भी नहीं चाहती, कबाड़ी को भी नहीं देना चाहती, मुझे अपने पास इसको रखना है। ऐसे मैं रख नहीं सकती, क्योंकि घर वालों ने कहा कि नहीं, साइकिल क्या है, कहाँ रहेगी, और ऐसी पड़ी रहेगी, इसको चलाना भी नहीं है, इसको निकालो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ मैं इसका करूंगी, प्लीज इसे निकालिए नहीं, घर के अंदर तो रख नहीं सकते, बाहर ही कहीं रखना है। बाहर रखेंगे तो बारिश, पानी, धूप में ये बिल्कुल खराब हो जाएगी, देखने में बुरी लगेगी, गंदी लगेगी, फिर लोग कहेंगे इसको फेंको। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस साइकिल को मैं रखे रहूं और कोई मुझे फेंकने को भी ना कहे, और ये खुशनुमा भी लगे। बताइए इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, या क्या इसका आप लोग सोच सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, but it has to be something which uses your creativity skills. आप टाइप कर सकते हैं उसको, फोटो तो निकाल ही लिया, लेकिन मुझे फोटो नहीं रखना है, मुझे साइकिल ही रखनी है पूरी पूरी। तो उसको कैसे रखो? गार्डनिंग, यू आर वेरी क्लोज, लेकिन गार्डनिंग कैसे करेंगे इससे? कवर लगा दें, हाँ कवर लगा के रख सकते हैं, लेकिन वो पड़ी रहेगी ना। रूम डेकोरेट कर सकते हैं साइकिल को डेकोरेट करके, वेरी गुड, बच्चों के काम आएगी, हाँ बिल्कुल बच्चों के काम आ सकती है, बच्चों को दूसरी साइकिल चाहिए, उन्हें पुरानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी किसी ने इसका क्या किया, इस साइकिल को किस तरह से किराए पे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप लोग कितने क्रिएटिव होते जा रहे हैं, जो चीज मैंने नहीं सोची वो आप लोग बता रहे हैं। सो यू आर यूजिंग योर क्रिएटिव स्किल्स, दूसरे को यूज करने दो, बिल्कुल। सो सी हाउ क्रिएटिव यू हैव बिकम। एक साइकिल देख के कितने सारे ख्याल आपके दिमाग में आ गए। एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, बिल्कुल सही, स्टैंड पे खड़ा करके इसको यही स्टैंडिंग साइकिल बना सकते हैं, वेरी गुड, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। लेट अस सी फिटनेस के लिए, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लेट्स सी व्हाट हैज बीन डन विद दिस साइकिल। ये देखिए किसी ने कितनी खूबसूरती से इसको ऐसे अच्छा बना दिया कि अब इसको कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, अगर गार्डन है उसमें खड़ा कर लें, या कोई भी थोड़ी सी भी जगह है तो खड़ा कर लिया, उसमें फ्लावर्स लगा दिए, कितना अच्छा लग रहा है। और आपके आइडियाज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे आइडियाज आपने दिए हैं, यू हैव बीन यूजिंग योर क्रिएटिव स्किल्स, एंड आई थिंक आप लोग सब बहुत क्रिएटिव हैं, जिन लोगों ने भी जवाब दिया, और जिन्होंने नहीं दिए शायद वो भी हैं किसी वजह से दे नहीं पाए। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्किल देखते हैं क्या आ रही है। नेक्स्ट प्लीज, इनिशिएटिव। नाउ एक स्किल पहले हमने देखी थी, वो मुझे याद नहीं आ रही क्या थी, दैट ऑल्सो वॉज वेरी क्लोज टू दिस। क्या था? ओके चले कोई बात नहीं, दिस इज वेरी इज क्लोज टू इट, रिलायबिलिटी। या रिलायबिलिटी से मिलती जुलती स्किल है, लेकिन उससे एक कदम आगे। अब इसका क्या मतलब होता है? इनिशिएटिव का क्या मतलब है? इसका एक दूसरा वर्ड
आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोएक्टिव भी कहा जाता है। जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं उनको ये भी कहा जाता है कि वो प्रोएक्टिव है। जो दूसरी पिक्चर है जिसमें वो फिगर्स खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि एक लाइन में सब खड़े हैं। जो रेड फिगर है वो एक कदम आगे आ गया है। आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि व्हाट टेकिंग एन इनिशिएटिव मीन्स। यू हैव टू बी दैट वन पर्सन जो लाइन में से बाहर निकल के फर्स्ट कुछ करता है। सो ये एक ऐसी क्वालिटी है विच हेल्प्स यू टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। ये भी डेवलप की जा सकती है। तो आपने एक सिचुएशन को असेस किया, बगैर किसी के कहे आपको लगा कि ये काम कर देना चाहिए, आपने कर दिया। दैट मीन्स यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, इससे पहले कि कोई उसको समझे, आपने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पे वर्क कर दिया। यू हैव टेकन द इनिशिएटिव। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि टू डेमोन्स्ट्रेट, टू एक्सप्लेन व्हाट टेकिंग इनिशिएटिव मीन्स। किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से कंट्रोल करनी, अगर क्रिएट किया या कंट्रोल किया है, ना कि कोई आपके सामने सिचुएशन आई और यू आर वेटिंग फॉर अ सिचुएशन समथिंग टू हैपन और तब आप रिस्पॉन्ड करें। उससे पहले आपने सिचुएशन या तो खुद क्रिएट की, या एक सिचुएशन है किसी ने आपसे कुछ कहा नहीं लेकिन आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, टेकिंग द इनिशिएटिव, डूइंग समथिंग बिफोर अदर्स डू इट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इन द वर्क प्लेस, अभी भी है और आगे चल के और हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। अब इस स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक ये फिगर है, एक ये पिक्चर आपके सामने है। एक ये एक्सीडेंट हुआ है और 4 लोग यहाँ पर हैं। एक तो उसकी फोटो ले रहे हैं और मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। एक जो है साहब वो बिल्कुल सकते में आ गए, उनसे हिला भी नहीं जा रहा, इतना घबरा गए, वो फ्रीज कर गए हैं अपनी जगह। फिर एक उनके जो नीचे हैं वो सर पकड़ के खड़े हो गए कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। और ये बिल्कुल ये भी एकदम फ्रीज कर गए। और जो वो साहिबा हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी से फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। अब इनमें से कौन है, आई थिंक बहुत ऑब्वियस आंसर है, फिर भी आप लोग बताएं इनिशिएटिव इनमें से किसने लिया है। चलिए, ये आप लोग को दिख भी रहा होगा, एम्बुलेंस को कॉल करने वाला। वेरी गुड, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। जो एम्बुलेंस को कॉल करी उसने इनिशिएटिव ले लिया। बाकी सब या तो खुद सकते में आ गए, फ्रीज कर गए, या कुछ लोग एंजॉय करने लगे। लेकिन जो असल काम करना था वो किसने किया? और आप अक्सर देखेंगे कि साल में जो वो कौन से ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं वो अक्सर बच्चों को जाते हैं जिन्होंने ऐसा ही कुछ काम किया होता है। दे टेक द इनिशिएटिव, किसी को बचाया है, कुछ आगे बढ़ के कुछ किया है बगैर किसी के कहे, बस उन्होंने सिचुएशन को असेस किया और खुद से कुछ कर दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। सो जैसे जो मैं अभी तक बता रही हूँ कि बगैर बताए अपॉर्चुनिटी को देखिए, उसे ग्रैब कीजिए, एक्ट कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। कोई अगर टास्क है तो खुद से वॉलंटियर कीजिए, ऑफर टू टेक ऑन अ टास्क, चाहे वो काम में हो, स्कूल में हो, आपके कॉलेज में हो, कोई असाइनमेंट है, खुद से बढ़ के अगर वॉलंटियर्स के लिए पूछा जा रहा है, खुद से आगे बढ़ के कहिए कि मैं कर देता हूँ। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। जब आप वॉलंटरली कोई काम करते हैं या आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता है आपको मुश्किल हो सकता है आपको वक्त देना पड़े, हो सकता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी ना लगे, लेकिन आप उससे भी बहुत कुछ सीखें। तो ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई टू टेक इनिशिएटिव इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी चीज आप कर रहे हैं। और अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ा, अभी मैं जाके आराम से बैठ के आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपको दिखा कि ये अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं इसको काम को ले लूंगा तो कुछ ना कुछ मैं सीखने को मुझे मिल जाएगा, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। निकलना पड़ेगा अगर आपको इनिशिएटिव लेना है, स्किल्स डेवलप करनी है, तो अपने जो आराम की जगह है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग हर वक्त आराम करते हैं, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत से करते होंगे, टाइम की भी किल्लत होती होगी, कम मिलता होगा, लेकिन जब भी मौका हो, जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको जरूर अवेल कीजिए, उसको ग्रैब कीजिए in order to improve yourself, in order to improve your skills.
नेक्स्ट प्लीज। अब हम आ जाते हैं, ये बहुत दो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड स्किल्स हैं ये, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दो ऐसी चीज हैं, टाइम पहले वो देखते हैं कि क्या है, क्या ये, व्हाट डज स्ट्रेस मीन्स, स्ट्रेस होता क्या है और क्यों होता है। ये एक बहुत कुदरती टाइप की फीलिंग है when you are not being able to meet the demands जो आपके ऊपर है। तो कोई आपको कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में तो बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप आ सकते हैं अगर आपने अपना टाइम मैनेज ठीक से नहीं किया है, और अगर स्ट्रेस में है तो टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर रही। बहुत इंटर रिलेटेड दोनों चीजें हैं। तो आप लोग तो बहुत ज्यादा ये एक्सपीरियंस करते होंगे, बीइंग अंडर स्ट्रेस, एग्जाम के करीब है, या अभी जैसे ये तो जो माहौल था ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही तकलीफ दे था, बहुत स्ट्रेस इसमें जनरेट हुआ होगा। लेकिन बहरहाल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है अक्सर, जैसे पैंडेमिक हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो हम उसके बारे में ही सोचें। स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस लेना या स्ट्रेस फील करना, दैट इज नॉट द इशू। ये कभी नहीं कहा जाएगा कि आप स्ट्रेस फील मत कीजिए, स्ट्रेस फील करेंगे, वो एक नेचुरल फीलिंग है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, बट उसको मैनेज कैसे करें ये इम्पोर्टेंट, ये स्किल सीखने की जरूरत। तो ये, और ये जो डिमांड्स की मैंने बात की कि ऐसी डिमांड्स जो कि जिससे आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिमांड्स स्कूल में हो सकती हैं, आपकी वर्क अगर आप काम करते हैं उसमें, आपकी रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, और बहुत सी आप इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या फैमिली में सिचुएशन हो सकती है जिससे आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और उससे आप थ्रेटन्ड महसूस करते हैं। कभी कभी ये थ्रेट रियल होती है और कभी ये परसीव्ड होती है, आपके दिमाग में होती है कि इससे ये हो जाएगा, वो हुआ नहीं है लेकिन आप आगे का सोच के स्ट्रेस में अभी आ जाते हैं। तो इसको किस तरह से डील करना है। और दूसरा है पुअर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, अरे इतनी देर हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे नहीं पता चला? आपके पास घड़ी है, आपके पास फोन है, वॉल क्लॉक्स है, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आप टाइम देखते होंगे। तो और अक्सर हम लोगों को ये कहते सुनते, शायद मैं भी कहती हूँ, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ चला गया। ये इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। अ स्किल दैट वी हैव टू लर्न। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? जब हम कामों को टालते, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहा जाता है। कोई काम अभी करना है लेकिन अच्छा चलो बाद में कर लेंगे, अभी हम बैठ के आराम कर लेते हैं, अभी चाय कर लेते हैं, अभी दोस्तों से बात कर लेते हैं, बाद में ये काम कर लेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट इस तरह पुअर होना शुरू हो गया। प्लानिंग नहीं की आपने सही से। पुअर प्लानिंग स्किल्स, मैंने बताया था ना, सब इंटर रिलेटेड है सारी स्किल्स। तो आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर हो जाता है। प्रायोरिटाइज नहीं किया, क्या चीज पहले इंपॉर्टेंट है जो मुझे पहले करनी है, क्या चीज लेस इंपॉर्टेंट है जो मुझे बाद में करनी है, वो मैंने सही से नहीं, अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर हो गया। और साथ में मान के चलिए कि स्ट्रेस बिल्डअप होता जा रहा है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आप बस ड्रिफ्ट कर रहे हैं, अच्छा चलो ये कर लेता है, ये अपॉर्चुनिटी आ गई चलो ये कर लेते हैं, सोचा ही नहीं कि मुझे आगे करना क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। मोटिवेशन नहीं है आपको कोई आगे बढ़ने का ख्याल ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो अ लैक ऑफ मोटिवेशन। और कभी कभी के टाइम को एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, जो मैंने शुरू से कहा ना, पता ही नहीं कहाँ टाइम चला गया। तो दिस इज बैड एस्टिमेशन ऑफ टाइम। हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि टाइम हमारा कहाँ चला गया, और जो चला गया वो वापस तो नहीं आना है। तो कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें सीखनी बहुत जरूरी है। नाउ हाउ डू वी डू दैट? नेक्स्ट प्लीज। तो पहले टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं, जो नहीं किया था वही करना है, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट पुअर हो गया था वही करना है। गोल्स और डेडलाइंस अपनी बना लीजिए, उसको एज फार एज पॉसिबल मीट करने की कोशिश कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए। यहाँ आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो मैं एक चीज पढ़ाई के दौरान में जो मेरे लिए काम करती थी वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। हम लोग जब, अभी तो आप लोग एक ही कोर्स कर रहे हैं, टॉपिक सब रिलेटेड है और सब आपको गालिबन पसंद ही होंगे, बिकॉज यू आर इन दिस कोर्स, सोच समझ के चूज करके ये कोर्स लिया होगा।
तो सब चीज आपको सही लग रही होगी। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम 10 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें से कुछ हमें पसंद होते हैं, कुछ नहीं पसंद होते, और नतीजा क्या होता है, जो हमें पसंद नहीं होता उसमें हम पीछे गिरने लगते हैं, हमारे मार्क्स कम आते हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो वहां पर मैं ये देखती थी कि जब मैं फ्रेश पढ़ाई के लिए बैठती थी तो मैं पहले वो चीज पढ़ती थी जो मुझे पसंद नहीं थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मेरा माइंड फ्रेश है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ पढ़ने के लिए, तो मैंने जल्दी से वो पढ़ लिया पहले। विद अ फ्रेश माइंड आई हैव डेल्ट विद अ सब्जेक्ट which I did not like, which I'm not interested in, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। और as time goes by तो फिर लेस इम्पोर्टेंट, लेस इंटरेस्टिंग, ऐसे करते करते फाइनली मैं वो सब्जेक्ट तक पहुंच गई लास्ट में जो मुझे बहुत पसंद है ना। क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद है तो मैं थकान में भी उसको पढ़ूंगी, क्योंकि मैं एंजॉय करती हूँ उसको और मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। ये एक प्रायोरिटाइजेशन की स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह काम करती है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अपना के देखें। एंड यू कैन ऑफ कोर्स हैव योर ओन स्ट्रैटेजी टू मैनेज योर टाइम वेल। टाइम टेबल बनाइए, अपने को ऑर्गेनाइज्ड रखिए, नॉन एसेंशियल टास्क जो है वो हटा दीजिए, कीप देम फॉर द वीकेंड। जो चीज के बगैर काम चल सकता है वो अभी मत कीजिए, वो तब कीजिएगा जब लेजर टाइम होगा, जब फ्री टाइम आपके पास होगा। प्लानिंग, जैसे मैंने बताया, प्लानिंग कर लेंगे तो हर चीज, वही टाइम टेबल बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो प्लानिंग ही चल रही है। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो हर चीज को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ काम किसी को दीजिए, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज भी होती होंगी आपके यहाँ, तो काम को बांट लीजिए। हर कोई हर काम नहीं कर सकता है, उसको बांट लेंगे तो स्ट्रेस और टाइम दोनों अच्छी तरह मैनेज हो जाएगा। और जब बिल्कुल भी आपको लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते तो टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इवन अगर टाइम की किल्लत है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, 10 ही मिनट का सही, चाहे घूम आइए, टहल आइए, चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, दोस्त से बात कर लीजिए, डू समथिंग दैट विल गिव यू दैट ब्रेक, दैट विल गिव यू दैट रेस्ट, so that you can start again. These are the different ways you can try to improve your stress and time management levels. Next please. अब आते हैं रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी पे। ये भी बताई थी मैंने, ये सब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्किल्स हैं, मैं सब वही आपसे डिस्कस कर रही हूँ बहुत ब्रीफली। अब रेजिलियंस क्या है? इट इज द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट लाइफ इवेंट्स। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ आता है, होता है, उससे हम कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह बाहर निकल आते हैं, ये रेजिलियंस स्किल से हम कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर रेजिलियंस है तो हम ये बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हमें दिक्कत होगी, हम उस प्रॉब्लम को फिर अपने ऊपर हावी करते चले जाएंगे, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी पढ़ाई लिखाई पे असर पड़ेगा, आपकी डेली रूटीन पे असर पड़ेगा। तो रेजिलियंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सो अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके सामने कोई अगर अनटुवर्ड सिचुएशन आती है तो आपको डिप्रेस फील ही नहीं करना, सैड होना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल फीलिंग है, इसको आप फाइट नहीं कर सकते, इसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उससे कितनी जल्दी आप बाउंस बैक कर जाते हैं, कितनी जल्दी उससे बाहर निकल आते हैं, वो रेजिलियंस है। तो इस स्किल को आपको डेवलप करना है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट in response to changes in the environment. आप किसी नई जगह जाते हैं, कितनी जल्दी वहां अडेप्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी आप वहां पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, that is because of your flexibility. So कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए, अगर आप उसमें फौरन तो नहीं लेकिन कुछ वक्त में अडेप्ट कर लेते हैं और उसमें से पॉजिटिव्स निकाल लेते हैं, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की नुमाइंदगी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहने वाली है। यू विल बी मूविंग आउट, आप यहाँ से निकल के कहीं और जाएंगे, वहां से निकल के कहीं और जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आप ये करेंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स मिलेंगे। अगर ये स्किल आपने डेवलप नहीं की
तो आपको दिक्कत पेश आएगी। और किसी भी तरह से अगर हम परेशान होते हैं तो वो पूरी हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो ये स्किल्स हमारी पर्सनल वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी। नेक्स्ट प्लीज। अब इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, उसी से क्यूज लेंगे। किस वजह से ये होता है? एक्सेप्ट चेंज। चेंज इनएविटेबल है। चेंज, कुछ लोग कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। वो पूरी तरह डिपेंडेबल है कि चेंज तो होना ही होना है, तो उसको एक्सेप्ट करके चलिए, उससे लड़िए मत। वो होना है, चेंज तो होना ही होना है। एक जगह रह के भी चेंजेस होते हैं। हम पिछले 1-2 साल से अपने घर ही में थे, लेकिन कितना चेंज हो गया था। एवरीथिंग हैज हैड चेंज्ड। जो अडेप्ट कर पाए वो कंफर्टेबल हो गए कुछ दिनों में, उसके आदी हो गए, और जिन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया वो बहुत दिनों तक मिजरेबल रहे। तो ये बहुत सारी चीजें ये पैंडेमिक हमें सिखा गया है। बहुत सारी स्किल्स हमें डेवलप हो गई हैं, न्यू स्किल्स हमने लर्न कर ली हैं उसकी वजह से। एंड रेजिलियंस इज वन ऑफ देम, फ्लेक्सिबिलिटी इज अनदर। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई भी काम को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश कीजिए। प्लान्स बनाइए, प्लान ए बी सी। प्लान ए काम नहीं कर रहा तो बी कीजिए, बी भी नहीं काम कर रहा तो सी कीजिए, बट हैव चेंज इन योर लाइफ। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब और आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। प्लानिंग, जैसे कितनी दफा मैंने प्लान का वर्ड यूज किया। टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लान योरसेल्फ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डू सम प्लानिंग, लिस्ट बनाइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली यहाँ पर भी देख लें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये है क्या। अगर ये दो चीजें, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग अगर कर लेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि प्लानिंग अगर आपकी अच्छी हो जाए, आप पहले से कर लें, तो आपके आने के वाले जो काम हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। अब ये जो पिक्चर राइट में है, ये कितना कॉमन सीन है। मेरे ख्याल से हर शहर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तारों का एक गुच्छा पोल के ऊपर टंगा रहता है। एंड व्हाट डज इट डेमोन्स्ट्रेट? इट डेमोन्स्ट्रेट्स पुअर प्लानिंग। पहले बिजली का एक खंबा लगा दिया, उसके बाद आया केबल टेलीविजन, उसका भी उसी पे लपेट दिया गया। उसके बाद आया कोई सा ये इंटरनेट का फाइबर आ गया, वो भी उसमें लपेट दिया गया। अब होते होते क्या हाल हो गया ये। दिस इज अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पुअर प्लानिंग। अगर इसी को प्लान तरीके से किया जाता तो हमको ये नजारा देखने को, अनप्लेजेंट नजारा देखने को नहीं मिलता, और जो इसके पीछे खूबसूरत सीनरी है वो छुटती नहीं, वो हमें दिखती और हम अच्छा फील करते। तो प्लानिंग हर स्टेज में बहुत जरूरी है। इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जल्दी से एक लुक देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बहुत अच्छा तरीका है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सीखने के लिए, ये स्किल सीखने के लिए, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर लें। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। ये आपके घर में भी हो सकता, ये आपके कॉलेज में हो सकता है। आप घर जाते हैं तो छोटी मोटी तकरीबें होती हैं, कभी कोई छोटी सी दावत है या कुछ लोग खाने पे आ रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी ले लीजिए। फ्रॉम डिजाइनिंग द मेन्यू, फ्रॉम कि क्या बनेगा, नाश्ते में क्या होगा, खाने में क्या होगा, मेहमान कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, उसको एक लिस्ट बनाइए। बिलीव मी, काम बहुत आसान हो जाएगा और पूरे हाउस होल्ड को इससे आपकी हेल्प मिलेगी। और भी कुछ हो सकता है, कोई गेम इवेंट है, कोई और लेजर इवेंट है, उसको आप खुद ऑर्गेनाइज कीजिए। मेक लिस्ट, डू इट द प्रॉपर वे। आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे सब याद रहेगा, आई कैन डू इट, हमको याद रहेगा इस वक्त क्या करना है। बिलीव मी, इट डजंट वर्क। बहुत चीजें हम एंड वक्त पे भूल जाते हैं। तो लिस्ट बनाने की आदत डालिए। दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर प्लानिंग स्किल एंड योर ऑर्गेनाइजिंग स्किल। अब ये आप सोचेंगे कि लीडरशिप की क्यों हम बात कर रहे हैं? इस वजह से कि ये स्किल हर किसी में होनी जरूरी है, सिर्फ एक लीडर में ही नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लीडर्स इन आवर ओन वे। हम कुछ ना कुछ लीड कर रहे हैं, या तो हम अपने छोटे बहन भाइयों को लीड कर रहे हैं, या फैमिली में हम कुछ लीड कर रहे हैं, क्लासरूम में लीड कर रहे हैं, कोई इवेंट में लीड कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड हैंडी स्किल टू हैव, और इजी है, मुश्किल नहीं है। ये वो एबिलिटी है विच जब कोई आपको काम दिया जाए तो आप उसको खूबी से कर सके।
औरों को इन्वॉल्व करें, तब आप ट्रू लीडर कहलाएंगे। अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन लीडर वो होगा जो सबको इन्वॉल्व करके कोई एक्टिविटी या कोई रिजल्ट लेकर आए, कोई टास्क को अंजाम दे, वो ट्रू लीडर कहलाएगा। तो बहुत से काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो अच्छा मुझे एक लीडर का डेफिनेशन लगा था, वो मैं आपको बताती हूँ कि किसी ने कहा है, अ गुड लीडर मेक्स हिमसेल्फ रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब है बेकार। तो अच्छा लीडर वो होता है जो कुछ दिनों के बाद बेकार हो जाता है, यानी कि जिसकी जरूरत लोगों को नहीं होती। अब ये बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लीडरशिप स्किल यही है कि आप दूसरों को इतना काबिल बना दें, अपनी टीम को इतना होनहार, इतना काबिल, इतना सलाहियतों से भर दें कि उन्हें आपकी जरूरत ही ना हो। That is the quality of a true leader, and all of us can do that. हमारे अंदर कोई स्किल है, हम दूसरे को सिखाएं, इतनी अच्छी तरह सिखा दें कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट वर्कर्स बना दें और वो आगे चल के औरों को इंडिपेंडेंट वर्कर्स बना। नेक्स्ट प्लीज, इस स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? तो वैसे तो ये सामने जो लिखा है, बी अ लीडर, एम्पावर पीपल, जो मैंने अभी बताया, मेक योर सेल्फ रिडंडेंट, इंस्पायर कीजिए, एक शेयर्ड विजन लेके चलिए। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे मैंने आपको बताए थे, कोर्सेज भी हैं, लीडरशिप कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अगर आप जहाँ रहते हैं वहां पर है, शॉर्ट कोर्सेज, एक वर्कशॉप्स भी होती हैं, लीडरशिप वर्कशॉप 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 1 हफ्ते की, 10 दिन की। अगर आप चाहते हैं ये क्वालिटी अपने अंदर, आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होगी, तो आप इस तरह से भी इसको सीख सकते हैं, इन क्वालिटीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैंने शुरू में बताया कि हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए, डेलीगेट कीजिए, सबको सीखने का मौका दीजिए, सबको इन्वॉल्व कीजिए। दैट विल मेक यू अ गुड लीडर, अ ग्रेट लीडर। नेक्स्ट प्लीज। अब बिल्कुल हम आखिर में पहुंच गए हैं, तो लास्ट में टीम वर्क की बात करते हैं। लीडर की बात की, बताया कि गुड लीडर कौन होता है। अब टीम वर्क के क्या फवायद हैं, यहाँ पे कहानी बहुत अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर देती है। ये 2 बीस्ट्स ऑफ बर्डन है बेचारे, जिनके सामने घास रख दी गई है, सब दोनों को खाना है, लेकिन वो इतनी दूर है कि पहुंच नहीं पा रहे। बट व्हेन दे गेट टुगेदर, कोशिश कर ली हर तरह से, गले में फंदा लग रहा होगा, जब उनको समझ में आ गया, बैठ के गौर फिक्र किया, सोचा, तो समझ में आया, और देखिए कितनी खूबी से फिर दोनों का पेट भर गया और घास भी खत्म हो। तो इससे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन टीम वर्क का मेरे हिसाब से नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब ये देखते हैं कि इस क्वालिटी को हम और फर्दर, अगर हमारे अंदर है भी, तो फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, हो सकता है आप लोगों ने इसको देखा भी हो। किसी ने ये एक्टिविटी देखी है, या कोई बता सकता है, शेयर कर सकता है क्या है ये एक्टिविटी और इसमें क्या हुआ था? आप लोग जो क्लासरूम में बैठे हैं, अगर किसी को पता है इसके बारे में, तो आप बता सकते हैं। एनीवन? जी हाँ, बताइए, कौन है, कौन बताना चाहेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं बताती हूँ। मुझे लगा शायद ये भी किसी ने देखी होगी। एक मिनट। खुद का बचा के दूसरे का फोड़ने का, पूरा बताओ। हाँ, पूरा अपना बताइए। खुद का बचाना और दूसरे का फोड़ना इसमें। ओके, गुड। आपको ये लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपना बचाना है, दूसरे का फोड़ना है। तो चलिए, मैं इसको जरा, आप बैठ जाएं, थैंक यू सो मच। मैं बताती हूँ कि इसमें टीम वर्क क्यों मैं लेकर, टीम वर्क की जगह ये क्यों इसको लेकर आई मैं, क्योंकि दूसरे का अगर फोड़ना है तो वो टीम वर्क तो नहीं हुआ। तो ये हुआ यहाँ पर ये कि ये बलून सबको दे दिए गए और ये कहा गया कि आप में से जिसका बलून आखिर तक बचा रह जाएगा वो जीत जाएगा। He or she will be the winner, जिसका बलून बचा रह जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया अभी
कि क्या हुआ इस एक्टिविटी में, सब लोग खड़े हुए, सबको एक पेन और बलून दिया गया था, सब खड़े हुए और फटाफट 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 सबका बलून फोड़ डाला। एक साहब बचे जो अपना बलून छुपा के पूरे वक्त घूमते रहे, तो उनका बलून बच गया किसी तरह, शायद वो बहुत टॉल थे, तो वो ऊपर उठा दिया, कोई पहुंच नहीं पाया, बलून उनका बच गया। और फिर वो हाथ जैसे ही नीचे किया, किसी ने मौका देख के उनका बलून भी फोड़ दिया। सब के सब हार गए, कोई नहीं जीता। इसमें फिर जो जिसने ये एक्टिविटी कराई थी, उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उन्होंने पूछा, मैंने आपसे ये कहा था कि जिसका बलून बचा रह जाएगा वो जीत जाएगा, ये तो नहीं कहा था कि आप सबके बलून फोड़ दें। अगर सबने अपना अपना बलून पकड़ के रखा होता और पिन को फेंक दिया होता तो सारे जीत जाते। ये नहीं कहा गया था कि आप दूसरों का फोड़ देंगे तब आप जीतेंगे, ये कहा गया था कि जिसका बचा रह जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि दूसरे को हम हरा देंगे तभी हम जीतेंगे। सच्चाई ये नहीं है, दूसरे को हराने से हम नहीं जीतते हैं, हम सबको जिताने से सबसे ज्यादा जीतते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी और मैं अब चाहूंगी कि कोई वो कहानी बताए। ये खरगोश और टॉर्टिस की, क्या कहते हैं, कछुए की। कौन सुनाएगा ये कहानी? इसमें भी एक बहुत बड़ा टीम वर्क लेसन बाद में हम देखेंगे। हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी। तो कौन सुनाएगा कहानी कछुए और खरगोश की, द रैबिट, हेयर एंड द टॉर्टिस? Okay, ma'am. Here is. बताइए। एक एक खरगोश एक खरगोश और कछुआ रहता, दोनों की ड्रेस लगती। खरगोश चलते चलते उसको खेत में जो है गाजर दिख जाती, तो खरगोश ये समझता कि कछुआ धीरे धीरे आ रहा है, तो मैं गाजर खेत में जाके थोड़ी खा लूंगा और थोड़ी देर आराम कर लूंगा। तो वो ये सोच कर खेत में रुक जाता है और मस्त नींद ले लेता है। धीरे धीरे जो है कछुआ जो है वहां पे पहुंच जाता है और खरगोश जो है हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। बिल्कुल सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई। और ये गाजर वाला एंगल तो नया है, तो बहुत, मैं यही सोचती थी कि ये खरगोश रुक क्यों गया था, उसको गाजर दिख गई थी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई और बिल्कुल सही सुनाई, यही है। अब इसके आगे क्या हुई कहानी जी? बच्चों का इम्प्रोवाइजेशन है ना, मॉडर्न जनरेशन। हाँ माशाल्लाह, इनोवेटिव, ये स्किल्स ऑलरेडी हैं। मैंने शुरू में कहा था ना कि स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं, उनको बाहर निकालना है और थोड़ा सा और चमकाना है, पॉलिश करना है, एनहांस करना है। तो अब ये हुआ कि खरगोश हार गया। अब आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। खरगोश हार गया और वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि वो तो बहुत तेज दौड़ता था। तो उसको ये अफसोस हुआ कि मैं तो इससे तेज दौड़ सकता था और अपनी सुस्ती की वजह से और लालच की वजह से गाजर दिख गई, मैं हार गया। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने कछुए को बुलाया और कहा कि दोबारा करेंगे रेस। तो कछुए ने कहा ठीक है, चलते हैं। इस बार वो पूरी लगन से भागा, कहीं ना गाजर भी दिखी तब भी वो गया नहीं उधर, और उसको रेस जीतनी थी। वो पहुंच गया, ऑफ कोर्स बहुत पहले पहुंच गया। कछुआ तो बेचारा 1-2 दिन के बाद पहुंचा, तो वो जीत गया, उसको जीतना था ही। अब कछुआ इस बार सैड हो गया, उस बार वो सैड हो गया था। तो कछुए ने कहा कि इस तरह से तो कभी, मैं इससे तो जीत ही नहीं सकता, तो ऐसा करते हैं, उससे डिस्कस किया, कहते हैं चलो फिर से एक रेस और लगाते हैं। तो जो खरगोश था वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, मैं तो, मुझे तो जीतना ही है। उन्होंने कहा ठीक है, लगाओ फिर से। तो उसने फिर से रेस लगाई। तो लेकिन कछुए ने कहा कि रूट मैं तय करूं, आप नहीं करेंगे। उनका ठीक है। अब वो भागना शुरू किया और बहुत जल्दी एक रिवर पर पहुंच गए, और जो फिनिशिंग लाइन थी वो रिवर के फौरन बाद। कछुआ पानी में उतरा, तेजी से तैरता हुआ गया और फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया। और
खरगोश तब तक बेचारा अपना सर खुजाता ही रह गया, कैसे जाए वो। तो इस तरह से कछुआ जीत गया। कहानी लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पहले पता चला था कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो वो कछुआ जीत गया था, बिकॉज वो स्लो था लेकिन स्टेडी था, लालच में नहीं आया, रुका नहीं, वो रेस जीत गया। दूसरी बार खरगोश जीत गया, क्यों? क्योंकि वो फास्ट एंड कंसिस्टेंट था, वो रुका नहीं, वो फास्ट भी था और पूरी तैयारी से भागता चला गया। सो फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। दूसरी सीख हमें ये मिली। अब क्या हुआ, जब फिर ये जीत गया, रिवर आ गई बीच में। अब इस वक्त तक ये लोग में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आखिर 3-3 रेस साथ में जीत चुके थे। तो दोनों ने सोचा कि ऐसा कोई क्या हो सकता है कि हम लोग दोनों जीत जाएं, कैसे होगा ऐसे, ऐसी कोई रेस लगाते हैं कि किसी को सैड ना होना पड़े, उनमें दोस्ती हो गई थी, तो चलो सोचते हैं। तो ये लोग दोनों निकल पड़े और जब वहां पहुंचे, रिवर तक पहुंचे, तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया और क्रॉस कर गया। और फिर जो बाकी मुसाफत थी, वो खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठाया और पहुंच गया, दोनों साथ पहुंच गए। बढ़िया टीम वर्क था कि नहीं? कैसी लगी कहानी आप लोग को? नाइस ना? ओके, सो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग इंडिविजुअली ब्रिलियंट हो सकते हैं, लेकिन कमाल की बात ये है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको जिताएं, सब जीतें। कुछ सलाहियत आप में है, कुछ आपके साथ वाले पर्सन में होगी, उनको कंबाइन क्यों ना कर लें, उसको क्यों ना हार्नेस करें, उसको लेके हम आगे क्यों ना चलें, ताकि हम सब लोग विनर्स हो। इसी बात पे मैं इस थॉट के साथ आपको छोड़ूंगी, इसको और एक्सप्लोर कीजिए, इसको समझिए, अपने को पहचानिए, अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कीजिए। ये सब चीजें मैंने इंटरनेट से ली हैं, आप भी ले सकते हैं, और फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने को खूब अच्छी तरह बासलाहियत कर लीजिए, ताकि जब तक आप बाहर फील्ड में निकलें, आपके अंदर ये स्किल्स ऑलरेडी मौजूद हों, आपकी पढ़ाई के साथ साथ, डोमेन नॉलेज के साथ साथ ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद हों, आपको इंतजार ना करना पड़े इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। एंड बिलीव मी, इट इज पॉसिबल। अगर अभी से आप वर्क करना शुरू करेंगे, आप सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई एम रेडी फॉर दैट। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। Dear students, we are open for the question and answers. You can either type the questions in the Q&A box or you can ask directly to ma'am. It offers 2 years diploma course in pharmacy. The total intake of the college is 60 students per year. Jamia College of Pharmacy is known for its quality infrastructure, state-of-the-art laboratories, modern pharmaceutical equipment, central instrumentation room, machine room, computer room, and above all, qualified and experienced workforce. Most of the staff is having 10 years and above experience. These staff members engage students for their all-round development as a professional pharmacists. Students are given free hand in the laboratories to use all the machines so that they shall not hesitate while using them in practical field. A library is a powerhouse of any institution. Jamia College of Pharmacy is having a spacious library containing thousands of books, magazines, national and international journals. A medicinal garden is specially set up within college premises for better understanding of plants of medicinal properties. Students are accommodated in beautiful hostel buildings with clean and tidy environment where they have to follow with strict discipline so that they can focus on their studies only. Healthy and hygienic food is prepared in a large kitchen for these students and served in a huge dining hall 3 times a day.
Apart from academic activities, these students are also engaged in co-curricular and extracurricular activities. Jamia College of Pharmacy has a very good track record in sports, especially in cricket. It has won many regional tournaments. All these facilities have shown positive results. 895 students have completed diploma in pharmacy so far. And every year, many students are ranking high in MSBTE Mumbai board exams. After D-Pharmacy, a sizable number of students opt for higher studies as well. And a long list of pass-outs is now placed in many top pharmaceutical companies. Today, Jamia College of Pharmacy is regarded as one of the best pharmacy colleges in Maharashtra, with more than 17 years experience in pharmacy education. This was a short video by our college which we have shown to you. Thank you for allowing us to show our video, and we are very thankful to Shaheen ma'am as well as Aisha ma'am for providing this wonderful webinar wherein our students got the idea about soft skills. Now I would like to request our honorable principal, Professor Mohammad Tariq sir, to please come forward and say some words of gratitude to close the ceremony. Mohammad Tariq sir. Yes, sir. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Okay. So I am very much thankful to Association of Muslim Professionals for conducting today's program for our students. Definitely, this program will help all of our students. The things which are taught by Shaheen ma'am, these are very useful for today's life as well as for future life of our students, especially the time management. The madam which he has taught to our students. Apart from that, the time management, it is also taught by our Prophet. We have to be punctual regarding our salah, namaz. So if any person wants to become successful, he has to become punctual in his. Thank you so much, Mr. Tariq sir and Rahil sir, for giving us such a wonderful opportunity and such a active and participating audience as well. And also I'm very thankful to Ms. Shaheen Islam ma'am that she took time from her busy schedule and shared such a wonderful session on soft skills. And we are looking forward to schedule some more such wonderful sessions with you all, which will include all the 5 modules of employability training program that will be shared with Rahil sir. With this, I'll make a short dua, inshallah, and we'll wind up the session. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. O Allah, you are pure. I praise you and testify that there is none worthy of worship besides you. I seek forgiveness and pardon from you. If there was a good talk in the gathering, I pray you accept it. And if there was a futile and vain talk, then please forgive us. Thank you all of you. Thank you for attending this webinar. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.